Hello everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Madhulika and this is the second part of the video of the editorial discussion and news clipping of this today 6th December. So here I have an article from the Hindu which is talking about the cyclone which has recently hit your Tamil Nadu and Andhra Pradesh area in the south. So we'll read about the cyclone which is named as Chong. So there's two pronunciation. One pronunciation is given by the All India Radio and the other is Chong. Let's just look at the right pronunciation. हालांकि जो हमारे इंडियन ए न्यूज़ है उनका कहना है कि इसका pronunciation Chong है. आप देख सकते हैं कौन सा right pronunciation. So let us see about this. And the headline reads, Cyclone Chong was not responsible for Chennai trouble. Chennai trouble मतलब आपका जो चेन्नई में जो साइक्लोन आया हिट किया और असर पड़ा चेन्नई में वो अलोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है. साइक्लोन अलोन नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम्स है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉब्लम्स इन चेन्नई के लिए. सो लेट मी रीड आउट. Apportioning blame for calamity after a natural disaster is almost impossible, but Indian cities have often tried to ease this decision, and Chennai on December 4th was no exception. Later on December 3, rains began to pummel Chennai as cyclone Michong soon to intensify into a super cyclone storm, parked itself roughly 100 kilometers east to the city. सो इसमें बोला जा रहा था कि 4 दिसंबर में चेन्नई में आपका ये साइक्लोन आया मीचोंग. लेटर 3 दिसंबर में जो था तेज़ बारिश शुरू हो गया था चेन्नई में, विच के वजह से फाइनली ये साइक्लोन आपका मीचोंग बढ़ने लगा, एक सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया एंड इट वाज रफली 100 किलोमीटर ईस्ट टू द सिटी. मतलब 100 किलोमीटर तक आपका सिटी में स्प्रेड हुआ. नेक्स्ट वील सी. By the next morning, most areas have recorded more than 20 millimeter of rainfall, with a heavy recording more than 25 to 50 mm. The figure represents a breathtaking volume of water to be delivered in a single day, and which Tamil Nadu minister echoed when he said the city had not received as much rain in 7 decades. इसमें बोला जा रहा है कि क्या हुआ कि 4 दिसंबर को साइक्लोन आया, 3 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा, 4 दिसंबर को आपका साइक्लोन एक सुपर साइक्लोन मतलब बहुत तेज़ बाढ़ जैसा पानी आने लगा और फाइनली वो 100 किलोमीटर एरियाज़ में पूरा स्प्रेड होने लगा. अगली मॉर्निंग में क्या हुआ कि वो रिकॉर्ड किया कि रेन इट हैड गॉन, किसी चीज़ का मेजर होता है तो रेन आपका 20 mm 120 mm तक रिकॉर्ड बना दिया और उसके थोड़ा देर बाद 250 mm का रेनफॉल का क्वांटिटी जो बोला जाए या फिर कितना रेनफॉल हुआ, तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ. ये जो आप डेटा देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रेनफॉल था. और इसमें क्या हुआ कि ये सिंगल डे का था, सिंगल डे प्रपोर्शन था कितना रेनफॉल हुआ. इसमें क्या तमिलनाडु मिनिस्टर ने कहा कि ये सिटी मतलब चेन्नई वो पूरे 7 डेकेड में, एक डेकेड में कितना होता है 10 ईयर होता है, 7 डेकेड में कितना होगा आपका 70 ईयर्स. तो इतना 7 डिकेड में भी तमिलनाडु में इतना तेज़ रेनफॉल नहीं हुआ था, इतना सुपर साइक्लोन नहीं आया था जितना ये मीचोंग साइक्लोन की वजह से या इतना हैवी रेनफॉल की वजह से हुआ. But that is not the full story. The narratives built around disasters influence the responses to them, and proclamation that attribute a singularity to a natural calamity often feed an unfair line of reasoning in which nature shoulders all the blame. Just as the rain intensified over Chennai on December 4th morning, the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited shuts off power in the city as precaution, presuming to prevent loose cables from electrocutting
pedestrians in dirty water. That such a precaution was required at all speak volumes about the state of the power infrastructure. So let me tell you what is telling. क्या इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग फुल स्टोरी नहीं जानते, जो हम लोग सब कह रहे हैं कि सारा प्रॉब्लम साइक्लोन की वजह से या रेन की वजह से हुआ। द फुल रियलिटी इज़ नॉट दैट। इसमें माना जा रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग डिज़ास्टर को ब्लेम कर देते हैं या फिर नेचुरल कलामिटी को सारा ब्लेम लेना पड़ता है कि हाँ डिज़ास्टर हुआ इसीलिए वहाँ उस सिटी में तमिलनाडु या चेन्नई में दिक्कत हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि ये रेन तो इंटेंसिफाई हुआ, मतलब रेन बढ़ता गया। चेन्नई में 4 दिसंबर को एक भीषण रूप ले लिया साइक्लोन का। तो इसमें दिखाया गया कि मॉर्निंग के समय तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने पूरा सिटी का यानी चेन्नई का पूरा लाइन काट दिया। ठीक है, एज अ प्रिकॉशन टू प्रिवेंट लूज केबल्स फ्रॉम इलेक्ट्रो कटिंग पेडेस्ट्रियंस इन डर्टी वाटर। तो ताकि जब बिजली वगैरह पानी का प्रभाव इतना बढ़ गया तो बिजली काटना पड़ा, क्योंकि बिजली अगर रहता तो शॉक लग सकता है या फिर पानी में आग इलेक्ट्रिक आ सकता है, तो उसने वो किया। तो दैट सच a precaution was required at all spec volumes about the state of power infrastructure. There is no quick fix or shortcuts in addressing year of inadequate investment in maintenance and repair. तो ये आया मेन मुद्दा कि ये ऐसा तो हुआ, क्यों हो गया, इतना रेन बढ़ गया, क्यों आज से 7 डिकेड तक इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था पर इस बार इतना इंटेंसिफाई कर गया प्रॉब्लम। इसका सिंपल रीज़न है कि स्टेट ने या सरकार ने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं किया कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट, रिपेयर मेजर्स या मेंटेनेंस या क्विक एक्शंस ले सके लोगों को बचाने का साइक्लोन से या उसको कम करने का या उसको मेजर करने का ढंग से। ठीक है, सेवरल ट्रीज वर टॉपल्ड, वाटर स्टैग्नेटेड ऑन ऑलमोस्ट ऑल रोड्स। यह प्रॉब्लम्स बता रहा है, आप देखिएगा क्या क्या हुआ। ट्रीज वर टॉपल्ड, वाटर स्टैग्नेटेड ऑन ऑलमोस्ट ऑल रोड्स, ओवरहेड केबल्स फ्लू loose, and storm water drains were choked with plastic trash. Many trains were cancelled, the airport had to be closed, and there were reports of people being stranded at many locations. Yet, that 2023 was not 2015 reduct is to the cities as well as to the storm's credit. The former because of the warnings and preparations, more resilient civilian infrastructure, and people's memory of 2015. The latter because it dumped less water than 2015 tolerant did in a single day. तो इसमें बोला जाता है जब 2015 में ऐसा साइक्लोन वाला केस आया था तब क्या सिचुएशन था। तो इसमें बोला जा रहा था कि देखिए प्रॉब्लम्स तो है कि ट्री गिरने लगी, वाटर जम गया हर जगह, फिर केबल्स गिर गया या फिर बहुत नली वगैरह जाम हो गया था, प्लास्टिक्स वगैरह या कचरा थ्रैशेस से वहाँ पे भर गया था। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हुआ था कि ट्रेन्स को रोक दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। और पीपल दे वर बीइंग स्टैंडर्ड एट मेनी लोकेशन, मतलब पीपल वो लोग फंस गए थे अलग अलग लोकेशन में, उनको हेल्प कहीं से नहीं मिल रहा था। तो इसे क्या दिखाता है दैट 2023 मतलब ये ईयर वॉज नॉट 2015 reduct in the city as well as the storms credit the former because of the warnings and preparation, more silent civilian infrastructure and people's memory of 2015, the latter because dumped less water than the 2015 tolerant did in a single day. तो इसमें बता रहा है कि ये कंडीशन 2015 से वर्स है। क्यों? क्योंकि पहले से लोगों को कैलकुलेट ही नहीं किए थे, जैसे वेदर तापमान हम लोग नापते हैं वैसे ही उसमें कैलकुलेट ही नहीं किया गया था कि सिटी में ऐसा कोई स्टॉर्म हिट करने वाला है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है, या सरकार की तरफ से कोई मेंटेनेंस स्टेप नहीं लिया गया या इसके लिए प्रिपेयर नहीं हुए थे वो लोग ऐसे स्टॉर्म के लिए। प्लस इसमें ये भी बताया गया कि कैसे 2015 के समय जब हुआ था तो सिंगल डे में बहुत सारे प्रिकॉशन लिया गया था, या लोग रेडी थे या सरकार उसके लिए एक्शंस ले रही थी। उसके अलावा भी कम the extent to which climate change boosted cyclone Meechong is for attribution science to say
although it would be naive to wait for a verdict other than the warmer seas are feeding strong cyclones, but the city's ability to respond to such storm has been compromised by decades of construction, unplanned construction, defiance of zoning, and some forms of public indiscipline, especially littering. Expecting the results problem to be solved overnight or even by single government is unreasonable. Yet the process needs to be much faster than at the present, if only the preclude the need for drastic, even oxymoronic measures such as cutting power supply to guarantee safety. Guarantee safety. Finally, in Michong's wake, Chennai can start by doing something it failed in 2015, treating its sanitation workers, most Dalits and Adivasis better. तो इसमें बताया जा रहा है कि 2015 में जो साइक्लोन हिट किया था सिचुएशन वाज इवन मच वर्सर। इस बार तो वर्स है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, या जो भी क्रिटिक्स थे गवर्नमेंट का 2015 में और भी वर्स था। क्यों? क्योंकि वर्कर्स वगैरह या सैनिटेशन को नहीं देखा गया था। ऐसे सिचुएशन में दलित प्रजाति या लोअर कास्ट वाले लोग को भी बहुत सफ़र करना पड़ा था। और इसमें बोल रहा था कि द एक्सटेंट टू विच क्लाइमेट चेंज बूस्टेड साइक्लोन मिचोंग इज attribution science to say that although to be naive to wait to any verdict other than the warmer seas are feeding stronger cyclones। इसमें ये बोला जा रहा है कि कैसे पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, या रादर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी मेजर्स या प्रडिक्शन से। क्यों? देर इज़ अनप्लान कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन प्लान नहीं होता है कि इन्वायरमेंट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्लस देर इज़ डिफायंस ऑफ जोनिंग एंड सम फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इनडिसिप्लिन स्पेशली लिटरिंग, इधर उधर गंदगी फेंक देना, थ्रैश मतलब plastic thrashes का जमा होना, that is also somewhere responsible for such kind of heavy disaster. Expecting the results problem to be solved overnight or even by single government is unreasonable। अब इतना बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा डिजास्टर आया, तो एक सिंगल सरकार या एक सिंगल डे में उसका सोल्यूशन नहीं आ सकता है। Yet the process need to be faster than it is at present, if only to preclude the need of this drastic, even oxymoronic measures such as cutting power supply to guarantee safety। मतलब प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी फास्ट स्टेप्स लेना चाहिए प्रेजेंट स्टेट को देखकर। फॉर एग्जांपल बिजली काट दीजिए ताकि सेफ्टी मेजर्स सिक्योर रहे। फाइनली इट इज टेलिंग अबाउट द 2015 साइक्लोन और उसमें क्या कंडीशन था। तो आई होप इट इज़ ओके। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।